السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کل رات ایک بار پھر دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ دہشت گردوں نے کراچی ایئرپورٹ کے علاقے میں واقع اولڈ ٹرمینل، جو اب حج آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہاں داخل ہو کر اندھا دھند فائرنگ اور دستی بموں سے حملے کرتے رہے، جس کے بعد پاک فوج نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 7 ASF اہلکاروں سمیت 14 افراد اس میں شہید بھی ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتی؟ کچھ طاقتوں نے پہلے سری لنکا کی ٹیم پر حملہ کر کے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند کیے، تو کیا پاکستان میں انٹرنیشنل ٹریولنگ کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں؟ پوری دنیا میں پاکستان کو غیر محفوظ ملک کا آخر پیغام کیوں دینا چاہتا ہے اور کون دینا چاہتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف بلوچستان کے علاقے تفتان میں ایران سے آنے والے زائرین کی بس پر 2 خودکش حملے کیے گئے، جن میں 25 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ 21 جنوری 2014 کو بھی زائرین کی بس پر حملہ کیا جا چکا ہے۔ ہر طرف دہشت گردی کی فضا ہے۔ پاکستان میں آخر امن کب قائم ہوگا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز سب سے بڑی خبر، پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو کل رات دہشت گردی کا نشانہ بنا، اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کامیاب آپریشن پر پاک فوج کو مبارکباد پیش کی ہے، پاک فوج کے جوانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو زخمی ہیں اور شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ قاضی صاحب، بہت بڑا حملہ، جب حملے کی اطلاعات ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ایسے بڑے حملوں کا ہو جانا، انٹیلیجنس بھی اطلاع دے دیتی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ رپورٹس بھی آ چکی تھی ایسے حملوں کی، اس کے بعد پھر ہم ناکامی کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں عنصر آیا ہے نا اس کا خودکش حملے کا، اس میں رکاوٹ اب کیا کریں گے آپ؟ رکاوٹ ظاہر ہے جب آئے گا اس میں ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے وہ بھی پہن رکھا تھا، جو خودکش جیکٹس بھی پہن رکھی تھی، اور پھر ISPR یہ بھی بتا رہے ہیں جو 3 دھماکے ہوئے بیسیکلی انہی کے ایکسپلوژن سے ہوئے۔ ایک تو زخمی تھا، تو جب اس کو لاشوں کو اٹھانے گئے تو اس کو آپ اس طرح سے حل تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر، کیا باہر والے ہیں اندر والے ہیں؟ یہ بحث ہمارے یہاں چلتی رہتی ہے، بیرونی ہاتھ ہے اندرونی ہاتھ ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ ایک دوسرے کی اسٹیٹوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا آج کی سب سے بڑی ڈپلومیسی رہ گئی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر میں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی ہمیں ملے یہاں پہ لوگ جو بلوچستان میں بھی کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، باہر سے تب کوئی آتا ہے جب آپ کے اندر کوئی ویکنیس ہوتی ہے۔ انڈیا کے کشمیر میں اگر صورتحال ٹھیک ہو تو میرے خیال میں وہاں کی ان کی ہوم گرون انسرجنسی بھی ہے، تو ابھی یہ بات نکلے گی باہر، سامنے آئے گی، دیکھتے ہیں کہ کون سا آتا ہے۔ کلاسرا صاحب، دسمبر 2012 میں پشاور باچا خان ہوائی اڈے پر حملہ ہوتا ہے، اگست 2012 میں ضلع اٹک میں کامرا ایئر بیس پر حملہ ہوتا ہے، مئی 2011 میں کراچی مہران نیول بیس پر حملہ ہوتا ہے، 2009 میں ہمارے GHQ پر حملہ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے حملوں کے بعد آخر ہم آج سنبھل کیوں نہیں پائے؟ ایک حملے کے بعد دوسرا حملہ، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ، ناکامی کس کی ہے؟ شازیہ، آپ نے بڑا اچھا اس کو ریکیپ کیا ہے کہ کہاں کہاں میجر ہمارے اٹیکس ہوئے۔ ایک دو آپ تھوڑے سے میرا خیال ہے میں کچھ ایڈ کر دوں، جو اس طرح کے مزید حملے بھی ہوئے تھے۔ ایک ہم نے ایبٹ آباد کا بھی دیکھا تھا، ایک بہت بڑا ایک ہماری انٹیلیجنس فیلئر تھی کہ جو آپریشن ہوا تھا وہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اسامہ بن صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ایک جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، آپ کو یاد ہوگا سری لنکن ٹیم پہ ایک بہت بڑا اٹیک ہوا تھا جس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بند ہو گئی تھی۔ اب بھی خطرہ یہی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب کی دفعہ جو اٹیک ہوا ہے کراچی میں ایئرپورٹ پہ، تو خدا نہ خاصہ انٹرنیشنل فلائٹس کچھ بچی کھچی رہ گئی ہیں، کچھ یہاں سے عرب یا گلف ممالک سے کچھ فلائٹس آتی ہیں، اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، وہ آپریشن اپنے بند کرتی ہیں جیسے برٹش ایئر ویز نے بند کر دیے تھے۔ اچھا، سیم ہمیں دیکھنا پڑے گا جو انٹرنیشنل یہاں پہ سول ایویشن کیا ایک اپنی ایجنسی ہے، اب وہ پاکستان کو کلین چٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ بہت سارے میرا خیال ہے اس میں سیریس امپلیکیشنز ہیں۔ جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان اس وقت بدترین دہشت گردی کا شکار ہے، تو یہ واقعات تو نارمل سی بات ہے۔ دوسری بات جو تھوڑی سی میرا خیال ہے سخت ہے، لیکن اس کو کیے بغیر وہ بات نہیں بنے گی، جب تک جن لوگوں سے لیپسز ہو رہے ہیں آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، ان پہ کچھ پروسیڈ نہیں کریں گے، کسی میں یہ خوف نہیں ڈالیں گے کہ اس سے لیپس ہوگا وہ اپنا کام پراپر نہیں کریں گے، پوچھ گچھ ہوگی اور سزا بھی مل سکتی ہے، چیزیں امپروو نہیں ہوں گی۔ تو فار ایگزامپل اگر مجھ سے پوچھیں جو کراچی کا واقعہ ہے کہ 10 لوگ ہیں وہاں پہ کوسٹر پہ سپوزلی آئے ہیں یا ویگن پہ آئے ہیں اور شکل سے بھی غیر ملکی لگتے ہیں، ان کے پاس ویپنز ہیں، اسلحہ ہیں، اور پورے کراچی میں ہمارے پاس ہمیں بتایا جاتا ہے 26 ہماری ایجنسیز ہیں، اس میں ٹاپ کی سپریم ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ ایجنسیز تو رپورٹ دے دیتی ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ایجنسیز نے رپورٹ دے دی تھی، ناکامی کہاں پہ؟ سیکورٹی دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ شازیہ، یہ محض انٹیلیجنس سے یہ اکٹھی کر لینا ٹھیک ہے، کامیابی ہے،
एक काउंटर इंटेलिजेंस होती है, काउंटर ऑपरेशंस होते हैं। आप मुझे बता दें कि जी आपके फलां जगह पे अटैक आने, फेयर एनफ आपकी, हम मानते हैं कि आपकी वो कारकर्दगी है, तो लेकिन इसके बावजूद भी वो आके उस पे जगह पे हमला कर दें तो किसकी नाकामी है? इसका कोई फायदा नहीं है उस इंटेलिजेंस का, जब तक आप उस पर काउंटर अटैक ना करें। जिन लोगों ने हमले करने हैं आपको जगह का पता है, लोगों का पता है, आपने कॉल्स उनकी ट्रेस की हैं, आपको ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिली है, आपने इंटेलिजेंस इकट्ठी की, उन लोगों को पकड़ा है, ये अच्छी इंटेलिजेंस होती है। हम महज ये बता देना कि लेटर जारी कर देना जी कि फलां फलां अस्पताल को खतरा है, फलां एयरपोर्ट को खतरा है, कि फलां स्कूल या फलां थाने को खतरा है, इससे मसला हल नहीं होगा। आपको काउंटर इंटेलिजेंस और फेलियर है मेरा ख्याल है हमारी इंटेलिजेंस भी बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हमारी इससे बहुत ज्यादा, अभी सबसे बड़ा खतरा यही महसूस किया जा रहा है कि वो मुतासिर हो सकती है। क्रिकेट हमारी ऑलरेडी मुतासिर हो चुकी है, क्या कहें? देखिए, एक तो इस पे वक्त जरा कम रह गया, थोड़ी देर बाद ब्रेक आ जाएगी। आप मुझे, मैं आपको, आपने जो कहा, आपने कुछ हमलों की तफसील गिनवाई है, उसमें ये जो हमला है ना, इसको मेरा ख्याल है कि हमें लिंक करना चाहिए जो मेहरान बेस पर अटैक हुआ था और कामरा में। अच्छा, अब हमने एक बात नोट की है कि इस, यानी ये जो अटैक है इसमें आर्मी चीफ हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि कौमी असासों को का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और महफूज है, कौमी असासे महफूज। बिल्कुल, एयरपोर्ट से भी 3 मील के फासले पे है मेहरान बेस। अच्छा, अब ये दुरुस्त है कि इंटेलिजेंस जो है मजीद बेहतर होनी चाहिए, इस अटैक को रोकना चाहिए था, नुकसान कम से कम होना चाहिए था, ये अपनी जगह बातें दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूं कि इनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए जितने भी लोगों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बिल्कुल, वो हम जिक्र किया। देखिए, जब आप ये गुरिल्ला और जब मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स आपके अंदर काम कर रहे हैं, उनके पास ये लग्जरी है कि वो अपनी मर्जी से टारगेट का इंतखाब करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वक्त उनको पता होता है और वो अपने वक्त से, अपने रैकी के बाद वो प्लानिंग करके आते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं, ये जनरल सिचुएशन में रेड अलर्ट खड़े होते हैं। अब ये जो अटैक था, ये पूरी तरह से तैयारी करके आए थे। आगे जाहिर है उनको, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को संभाला है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑयल डिपो था, ठीक है, यहाँ जहाज तैयारी खड़े हुए थे, कार्गो के थे। अच्छा, उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि ये भरे हुए जहाज थे। फारूक सत्तार, एमक्यूएम के रहनुमा, एक जहाज में बैठ के लंदन बाउंड जो फ्लाइट थी उसमें जाना था, उस पे वो जा रहे थे और उसके बाद रनवे से वो जहाज वापस हुआ और उसके बाद वो कह रहे हैं कि धमाके हम सुन रहे थे। आप ये देखें कि उस पैसेंजर से वो भरा हुआ जहाज, उसको इवैक्यूएट करा लेना इन हालात में, और जबकि उसकी जो विंग्स हैं तैयारे के, वो ऑयल से फुल थे, तो वो यानी इस पर हमें यानी एक मुबारकबाद देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा, अच्छा, ये अब ये कि हमारी ये जो सलाहियत है इसका एक टेस्ट हो रहा है। जी हाँ, इसमें मजीद बात करेंगे। पाक फौज की कुर्बानियां हैं जिन्होंने हमेशा दहशतगर्दों के जो अज़ाइम हैं इनको नाकाम बनाया। इस पर मजीद आके बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर हसन अस्करी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि हर हमलों के बाद कहा जाता है कि इसमें अंदरूनी हाथ हो सकता है, बैरूनी हाथ हो सकता है, हर हमले के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आपको क्या लगता है कि इस हमले के पीछे कौन से हाथ हो सकते हैं, उनका मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तानी रियासत की जो एक मरकजी हैसियत है उसको चैलेंज करना है और पाकिस्तानियों को और आलमी बरादरी को दिखाना है कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो मौसर तौर पर फंक्शन नहीं कर सकती और ऐसी ग्रुप्स मौजूद हैं जब चाहे जहां चाहे चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तानी स्टेट के लिए, लेकिन ये है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने 4-5 घंटों में इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। तो इससे 2 लेसन हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान में इस किस्म के ग्रुप्स की बहुतात है जो वक्तन फवक्तन रियासत को चैलेंज करते हैं। दूसरा ये है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी रियासत के जो अदारे हैं उनके पास कैपेबिलिटी है, अगर वो चाहें तो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आपका इशारा तालिबान की तरफ है, पहले आप ये कार्रवाई करके प्रिएम्प्ट करें सिचुएशन। अगर आपका इशारा तालिबान की तरफ है तो आप नहीं समझते कि तालिबान के अंदर तो खुद इतने इख्तलाफात हैं, उनकी क़यादत खुद टूट फूट का शिकार है, तो उनमें इतनी पावर बाकी रह जाती है कि वो इस तरह के हमले कर सके? देखिए, तालिबान है, कुछ और ग्रुप्स भी पाकिस्तान में इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं। बात यह है कि जो तहरीक तालिबान है वो एक कलेक्टिविटी है जिसमें बहुत से ग्रुप्स मौजूद हैं और ये ग्रुप्स जो हैं इंडिविजुअली, उनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं
जो चाहे वो मेन लैंड में हो, चाहे वो ट्राइबल एरिया में हो। आपने एक बड़ी अहम बात की है, आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। पहले भी कार्रवाइयां आपके यहाँ हुई हैं 2009 से क्रिकेट वाले वाकये का जिसका यहाँ तस्करा हुआ उससे आज तक। अस्करी साहब आपने एक बड़ी अहम बात की जिसपे हम अभी बात अनीक भी कर रहे थे, प्रीएम्प्ट करने का। हमारी एजेंसी ये तो बता देती है हमला होने वाला है, उनमें इन्फिल्ट्रेट नहीं करते, उनको थॉट नहीं करते, फॉयल नहीं करते, हो जाता है मगर इतला मिल जाती है। इसको कैसे देखते हैं आप? जी, आपने सही कहा कि वो के इंटेलिजेंस एजेंसीज इस किस्म की रिपोर्टें तो चलाती हैं कि ये इम्कानात हैं, वो इम्कानात हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस किस्म के ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए एक तो ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट करना जरूरी होता है कि अंदर की कार्रवाई पता लगे। दूसरा होता ये है कि ये जो ग्रुप्स हैं जो कि एक जगह में नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में फंक्शन करते हैं, इनके लोकल होस्ट्स होते हैं जो इनको मेहमान के तौर पे रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इनको इनिशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। तो आपको ये भी देखना होता है कि इनके मुकामी कॉन्टेक्ट क्या है, मतलब कराची के अंदर इनके कॉन्टेक्ट क्या हैं और किस तरह ऑपरेट करते हैं, तभी आप इन सिचुएशंस को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। इनके ताल्लुकात को तोड़ना बड़ी अहम बात की है। हसन अस्करी साहब, गार्डियन बरतानवी अखबार जो है उसने अपने तबसरे में ये कहा है कि ये जो डिटेक्टर्स लेकर कराची एयरपोर्ट के बाहर जो पर्सनल खड़े हुए थे, ये मिलते जुलते थे एक ब्रिटिश कॉनमैन, आपको याद है फ्रॉड में इस वक्त वो जेल में है, जिम मैकॉमिक। इसने फेक यानी जाली जो है बॉम्ब डिटेक्टर्स पूरी दुनिया को सप्लाई किए थे, इस वक्त ये जेल में है। तो गार्डियन ये कह रहा है कि इस पर भी वो थोड़ा शक का इजहार कर रहा है कि हमारे पास कितना इफेक्टिव है वो टूल्स जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं असले को, बॉम्ब्स को, और हमें यहां पे कितना विजिलेंट होने की जरूरत है, मतलब इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए। देखिए, ये आप बात कर रहे हैं स्कैनिंग सिस्टम की। पाकिस्तान के पास स्कैनिंग सिस्टम बहुत महदूद किस्म के हैं, कुछ थोड़े से इन्होंने मंगवाए हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए जरूरी होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड नुस्खा ये है कि वाकया हो जाएगा, उसके बाद हर गाड़ी को आप खोल के आगे पीछे चेक करेंगे, इस तरह नहीं होता। आपको मॉडर्न स्कैनिंग सिस्टम लाने चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपको हाथ ना कर जाए, फ्रॉड ना कर जाए, क्योंकि दुनिया में इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो ये जो कमजोरियां हैं टेररिज्म की वजह से हमारे जैसे मुल्कों के अंदर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, क्लासेस साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हसन अस्करी साहब से, उनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं आप? जी, मैं उनसे अस्करी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक हमारा एक तरह का वो ओब्लिगेशन बन गया जो हमें करना भी चाहिए कि जो ही दहशतगर्दी के इतने बड़े बड़े वाकयात होते हैं, उसके बाद ऑपरेशन होते हैं, हमारे ये बहादुर फौजी भी शहीद होते हैं, दूसरे भी लोग उसमें कैजुअल्टीज बनते हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं जो देनी भी चाहिए, लेकिन आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हमने नहीं देखा। 10-12 सालों में बड़े बड़े वाकयात हैं जिनको शाहजी ने भी गिनवाया है। आप समझते हैं कि जब तक कि किसी को अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा, कुछ लैप्सेस जिसके होते हैं उनको सजाएं नहीं देंगे, तो इसी तरह वाकयात होते रहेंगे और हम बैठ के एक दूसरे को मुबारकबादें ये देते रहेंगे और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कभी शुरू हो सकेगा मुल्क में? देखिए, आपकी बात सही है। एक जो इम्प्रेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि अगर आप डिफाइंस शो करें, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करें, आप निकल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी या इम्कानात ये हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, रियासत देखती रह जाएगी और निकल जाएगी। ये भी रियासती अदारों की कमजोरी है। रियासत के लिए जरूरी है कि वो अपने बुनियादी हैसियत को कायम रखे। उसके अलावा एक और जो अहम बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिकल डिस्कोर्स चलता है उसकी बुनियादी इकाई पाकिस्तानी रियासत नहीं है। उसकी वजह से बहुत से ऐसे तंजीमें जो रियासत को चैलेंज करती हैं, चाहे वायलेंस से चाहे किसी और तरीके से, उनको बड़ी आसानी से सपोर्ट जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए लाजिम है कि रियासत जो है वो सजाओं का देकर ये वाजे करे कि गलत काम करके निकलने के इम्कानात कम हैं। इस वक्त इम्प्रेशन ये है कि आप निकल सकते हैं, बड़ी बदकिस्मती होगी अगर आप पकड़े गए। ठीक है, हसन अस्करी साहब हमारे साथ में इस वक्त जनरल रिटायर्ड हमीद गुल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब। कहा जा रहा है डीजी रेंजर्स ने भी कहा कि कल कराची एयरपोर्ट पर जो हमला किया गया, जो असला इस्तेमाल किया गया, इंडियन साख्ता असला था। ये क्या जाहिर करता है? और दूसरा ये साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हमले मुंबई हमलों के तर्ज के हमले थे। क्या कहेंगे इस पे आप? ये बिल्कुल दुरुस्त भी हो सकता है और इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शन हो सकती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया एक अरसे से तुला बैठा है कि वो मुंबई हमलों का बदला लेगा। और दूसरी बात यह है कि उनकी यहाँ पे बहुत अरसे से
बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका, और वो नेटवर्क जो है जरा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। जो कुछ उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला करती थी मुख्तलिफ पार्टियों से, तो अब वो गालिबन उनकी आहिस्ता आहिस्ता हैसियत कम होती चली जा रही है। तो एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि बहुत बहस जारी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक डिटरमिन्ड टेररिस्ट जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो, आप उसके खिलाफ बहुत कम रेजिस्टेंस, उसका बहुत ज्यादा लूप होल्स जो उसके पास मौजूद होते हैं, क्योंकि उसके पास इनिशिएटिव होता है और वो जल्दी अपने हदफ को हासिल करना चाहता है, तो उसको रुकावट नहीं डाली जा सकती। यानी देयर इज नो रियली परफेक्ट सोल्यूशन कि आप उसको रोक सकें। मैं सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में देखते हैं हम, वैसे ये बिल्कुल एकेडमिकली, कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल सबसे पहले आती है। यानी किसी कौम के लोगों को अंदर अगर उनके जहनों को तब्दील कर दिया जाए तो फिर आप उसके अपने ही बंदे होते हैं, वो तो उसके अपने कौम के एक जैसे ही लोग हैं, और फिर उनको आजादी होती है घूमने फिरने की, तो वो उसका कोई तोड़ ही नहीं हुआ करता। ये बहुत इस तरीके से हल नहीं होता, क्योंकि ये इसकी नौयत सियासी होती है, इसकी नौयत वो नहीं होती जिसको हम क्राइम कहते हैं। तो ये आप एक तो याद रखिए कि जो मॉडर्न टेररिज्म है वो एक फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। हमीद गुल साहब, आप ISI के सरबराह भी रह चुके हैं, इंटेलिजेंस हेड रह चुके हैं, आप ये बताइएगा कि फेलियर आपको कहाँ लगा? इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अपना काम कर देती हैं, इन्फॉर्मेशन दे देती हैं, रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, तो फेलियर फिर कहाँ किस मकाम पे जाकर किस स्टेज पर आता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटेलिजेंस परफेक्ट होती है, क्योंकि जैसे अस्करी साहब बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आपको उनके ब्रेन सेल में घुसना पड़ता है ताकि उसकी टाइमिंग, उसके तरीके वारदात, यानी उन्हीं में से एक आदमी जो है आपका एजेंट होना चाहिए। लेकिन जो लोग मोटिवेटेड होते हैं वो उनके लिए, और इतने जब बिखरे होते हैं, जिनको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, जैसे शहद के छत्ते के अंदर एक सेल्स होते हैं कि आप एक अगर पंक्चर करेंगे तो एक कतरा बूंद निकलेगी, लेकिन बाकी छत्ता जो है वो महफूज रहेगा। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। जनरल साहब, एक सवाल मैं और करना चाहता हूं आपसे, ये फरमाइए, आप तो जिस तरह शाजिया कह रही हैं एक प्रीमियम एजेंसी हेड करते रहे हैं, इनकी डिटर्मिनेशन जो है और इनकी जो कैसे तैयार किया जाता है? ये 28-26 साल के नौजवान थे और ये मरने के लिए आए थे, कोई ब्रेन वॉशिंग की जाती है, नजरियाती तौर पर रास्तिक होते हैं, या अंडर किसी ये भी कहते हैं कुछ खिलाया पिलाया जाता है? कहानी क्या, आपका क्या इस बारे में टेक है? नहीं, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है उनको मोटिवेट करना नौजवानों को, क्योंकि उनको एक कॉज देना होता है। जब वो कॉज उनके सामने आ जाता है तो फिर उसके बाद वो उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, बड़े लार्जर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अमेरिका की आमद यहाँ थी या सोवियत यूनियन जब यहाँ पे आ गया था, और उन्होंने भी उस वक्त अपने जमाने में बहुत गदर मचाया था। दरअसल हमारे जितने प्रॉब्लम्स हैं वो तो अमेरिका की मौजूदगी की वजह से हैं। आखिर उससे पहले भी दुनिया चल ही रही थी ना। हमारा मुआशरा जो है इतना भी सफाक और गया गुजरा नहीं है कि वो इस किस्म की हरकतें करे। लेकिन मुश्किल ये है कि जब बाहर आ जाते हैं, वो एक स्लेग हेल्सन ने एक किताब लिखी थी कि बलूचिस्तान इन द शेडो ऑफ अफगानिस्तान, वो बड़ी जबरदस्त पढ़ने वाली किताब है, उससे बहुत से इंटरव्यू दिए हुए हैं। अब अगर आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि बलूचिस्तान के जितने, अब बलूचिस्तान के साथ फाटा को भी शामिल कर ले तो इसकी जितनी मुश्किलात हैं वो सारी की सारी अफगानिस्तान में ऐसी कुव्वतों की मौजूदगी से है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि पहले तो अहदाफ को तय कर लें कि ये तो वो हाथ हैं जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो ब्रेन है, जो सोच है, वो क्या है? वो है डी इस्लामाइज, डी न्यूक्लियराइज एंड डी मिलिटराइज पाकिस्तान। और आप देखेंगे इसके इशारे आपको हर जगह नजर आएंगे। जब हुकूमत और फौज और ISI उसकी जो बेहतरीन दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है उसी के दरमियान ठन जाएगी, तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो अटेंशन डाइवर्ट होगी, जिसका फायदा दुश्मन उठाता है। क्लासेस साहब, आप कुछ हमीद गुल साहब से पूछना चाह रहे हैं? जी, हमीद गुल साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े मेहरबान है। पूछना तो बहुत कुछ मैं इनसे चाह रहा हूँ, पूछिए। और इनसे मेरी डिबेट हमेशा रहती भी है जब भी मुलाकात होती है। एक बात अब गुल साहब बता रहे हैं कि जो काजी साहब ने सवाल किया कि पेनिट्रेशन क्यों नहीं हो सकती, तो आप ये जनरल साहब कह रहे हैं कि होनी चाहिए। 12 साल तो हो गए हैं, अब तक तो हो ही नहीं है। आप मजीद कितना इनको अरसा देना चाहते हैं कि होनी चाहिए? एक नंबर 1।
और दूसरी बात यह है कि आपने कहा मुश्किल है कंट्रोल करना, तो मॉडर्न दुनिया में हमने कुछ केसेस देखे हैं। इवन अमेरिका में हमने देखा है कि 9/11 एक दफा हुआ, उन्होंने फिर नहीं होने दिया। यहाँ बोस्टन बम्बिंग हुई, उन्होंने विदिन 24 घंटे में बंदे ढूंढ निकाले। हमने यूरोप को देखा है, लंदन 7/7 बम्बिंग देखी, हमने मैड्रिड देखा। वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी तो फ्लैश आउट कर लेती है, बंदे भी ढूंढ लेती हैं, उनको डील भी कर लेती हैं, टेररिज्म पे कंट्रोल भी कर लेती है। हमारी एजेंसी नहीं कर सकती। और हम जब हर दफा बैठ के अपोलोजिस्ट उनके बने रहते हैं कि ये फलां मुश्किल है, फलां मुश्किल। आप समझते नहीं है कि कुछ लैप्सेस हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, अपना पूरा काम नहीं कर पा रही जैसे उन्हें करना चाहिए। जी क्लासर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन आप देखें कि 9/11 के बाद जब एक सूरत हाल पैदा हुई तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने एक पेट्रियोटिक एक्ट बनाया और फिर उसके बाद वो एशक्रॉफ्ट जो उस वक्त थे उनके अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये पेट्रियोटिक एक्ट लेके फिर उसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स बनाई। उस जमाने में जो इसका इनिशियल कॉस्ट आई थी $40 बिलियन थी, और फिर उसके बाद उसको होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स को इतने इख्तियारात दे दिए गए कि अगर आप निकालें इस्लाम के ऊपर कोई किताब वहां पे आप वहां अमेरिका में मौजूद है तो FBI पूछने के लिए आ जाएगी या रात को कि आपने क्यों किताब ये इस्लाम के ऊपर निकाली है। तो उनको इसी तरीके से इंडिया ने किस अंदाज में वहां पे किया, लेकिन यहाँ क्या आपने किया, क्या लेजिस्लेट किया, कौन सी फोर्स आपने बनाई, कितना पैसा खर्च किया इसके ऊपर, और बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया ISI को डिमोरलाइज करने के लिए। आपकी बात कहा कि सर आपकी काउंटर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि 9/11 के बाद तो पाकिस्तान में फौज की अपनी हुकूमत थी, जनाब मुशर्रफ साहब बैठे थे, वो सारे कानून बना सकते थे, पार्लियामेंट उनकी थी, उनकी अपनी मर्जी के वजीर आजम थे, मर्जी के MNAs थे, ये मर्जी के सेनेटर्स थे, मर्जी की हाई कमांड थी। तो जनरल मुशर्रफ साहब और कंपनी तो बना सकते थे होमलैंड की बुनियाद पे, तो क्यों नहीं बनाई उन्होंने इन 10 सालों में? मेरे से पूछते हैं जो जनरल मुशर्रफ ने मुझे जेल में भेज दिया, यानी वो मुझे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने क्या किया। मुशर्रफ साहब नहीं, आप मुशर्रफ की तमाम गलतियां खामियां जो किसके खाते में डाल रहे हैं। साथ रहिए क्लास साथ रहिए, काम खबर हमें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है कि कराची एयरपोर्ट पर दोबारा से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। दोबारा से वहां पर फायरिंग हुई है और एक और दहशतगर्द हलाक होने की इत्तला वहां पर मौसूल हो रही है। कराची एयरपोर्ट बताया गया कि दोबारा से एक दफा फिर से वहां पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और एक और दहशतगर्द हलाक होने की इत्तला वहां से मौसूल हो रही है। याद रहे कि कुछ देर पहले तक कहा जा रहा था कि 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, और लेकिन अभी ताजा तरीन जो इत्तला मिली है वो ये है कि दहशतगर्द हलाक होने की इत्तला मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दहशतगर्दों के अलावा एक और दहशतगर्द भी वहां मौजूद था। जब हम प्रोग्राम के लिए शाजिया आ रहे थे तो ये था कि अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज अंदर हैं और फ्लश आउट कर रही हैं। उसमें एक पहले भी ये वाकया हुआ था कि एक जो उनका एक जख्मी था उसने अपने आप को एक्सप्लोर भी किया। मुमकिन हम रेहान से दोबारा बात कर सकें अगर हमारे साथ शाजिया। अभी कोशिश करेंगे उनसे बात। अच्छा, मैं एक बात इन द मीन वाइल क्लियर कर लूं। क्लासर साहब की जो बात है वो वैलिड थी कि यानी अगर इंसाफ हो और जो जिम्मेदार है उनको पकड़ा जाए, सजाएं मिलती हैं, तो ये मामला ये है कि इस वक्त मुबारकबाद उसको दी है जो खड़ा हुआ अपनी जान, वो खड़ा हुआ है इस वक्त और वो लड़ रहा है, वो अपनी जान पे खेल के हमारे हीरो हैं। अच्छा, उसको इस वक्त हम बैठ के तनकीद का निशाना बनाए, गालियां दें उसको इस वक्त? इस वक्त हम उसको मुबारकबाद देंगे, हम उसके लिए दुआ करेंगे, हम उसको सलूट करेंगे। रेहान हाशमी कराची के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रेहान, कहा गया था कि 10 दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया, एक और दहशतगर्द हलाक होने की इत्तलात मौसूली है। कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा राब्ता हो रेहान हाशमी से, कराची की ब्यूरो चीफ, और उनसे बात कर सकें कि 10 दहशतगर्दों के बाद क्या मजीद भी वहां पर दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तला मौसूल हो सकती है। कराची एयरपोर्ट पर दोबारा से बताया जा रहा है कि फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, एक और दहशतगर्द हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है। इस हवाले से मजीद जैसी अपडेट्स हमारे पास आएंगी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मजीद दहशतगर्द अभी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अच्छा शाजिया, मैं ये जो अभी बात हो रही थी ना, एक बात मेरे ख्याल में थोड़ी क्लैरिटी की जरूरत है। जो लोग खड़े होकर जाने दे रहे हैं वो हमारे हीरो तो हैं ही हैं, लेकिन जो क्लासर साहब बात कर रहे थे ना वो फेलियर की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जरा हम देखें कि वहां क्या बात दुरुस्त है। इसको एक्सप्लेन करने का अगर थोड़ा सा मेरा ख्याल है गलत। क्लासर मुझे ब्रेक लेनी है, क्लासर साहब मुझे ब्रेक लेनी है। आप ब्रेक ले लें और ब्रेक लेने से ब्रेक से पहले एक दफा फिर नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर दोबारा से फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और एक और दहशतगर्द हलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। इस बारे में मजीद हम आपको अपडेट करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम दुरानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तस्नीम दुरानी साहब, क्या कहेंगे आप इस हमले के हवाले से? किसकी नाकामी है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन से हाथ इसमें मुलविस हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाकी जो पिछले वाक़यात हुए उसके मुकाबले में इस हमले की जो रिस्पॉन्स थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की वो बहुत बेहतर थी, क्योंकि इस किस्म का जो अटैक है उसमें एयरपोर्ट को अटैक करना, मैं समझता हूँ कि एसेट और हवाई जहाज और इस किस्म की चीजों को मफलूज करना हो सकता था और मैं समझता हूँ कि है। तो इसमें द फैक्ट उन्हें जहाज जो है उनमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा और अभी पूरे जो नुकसान था उसका तो खैर अंदाजा अभी बताएंगे तो पता लगेगा। तो लगता ये है कि कार्गो वगैरह की कोई चीजें जो है उससे नुकसान पहुंचा है। तो इस वजह से दो इसमें कामयाबियां हैं कि न ही पैसेंजर्स को वो कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा सके और न एरोप्लेन को, जो कि बड़ी आसान था उनके लिए जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे, वो कर सकते थे। तो ये रिस्पांस मैं समझता हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की इनिशियली और उसके बाद लेकिन इससे दहशतगर्दों का मैसेज तो बड़ा स्ट्रांग है, बड़े वाजे है कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस को इस तरह से निशाना बना सकते हैं, किसी भी अहम इमारत को निशाना बना सकते हैं। देखिए, इसमें जो शहर हैं जिनमें हमारे पास सब सूबों के लोग बसते हैं, जैसे कराची है, जैसे इस्लामाबाद है, वो ज्यादा इस चीज के ससेप्टेबल है, क्योंकि वहां पर किसी और सूबे का बंदा जो है वो आए तो उसको, या किसी और कौमियत का बंदा आए तो उसको ज्यादा अजीब निगाहों से नहीं देखा जाएगा। इस वजह से कराची का जो टारगेट है, मैं समझता हूँ किया है कि वहां पर अगर कोई APK के कोई बंदा है या उज़्बेक है तो वो आसानी से वहां मेल्ट इन कर जाता है। तो इस किस्म के इलाकों में इस किस्म की चीजों को बिल्कुल रोकना जो है वो तो पॉसिबल नहीं। जो हौसला अफजा चीज है वो ये है कि जिस तरह इस टारगेट को डिफेंड किया गया है और उनकी जो ऑब्जेक्टिव। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा कि आप चूंकि सेक्रेटरी दाखिला रहे, अभी बताइए कि अंदरूनी जो यानी ये सलामती है, यानी कौन कौन सी हमारी चीजें आप समझते हैं कि तरजीहात में होनी चाहिए हुकूमत की, कौन से वो स्टेप्स हैं जिस तरह फौरी तौर पर फोकस करना चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी हमें कितनी अपग्रेड करनी चाहिए, स्कैनर्स वगैरह वगैरह? देखिए, वो जो चीजें हैं ना वो तो जाहिर है कि उसको तो जितना इम्प्रूव कर लें उतना कम है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डेडिकेशन जो होती है ना फाइट के, जो आपका जो ट्रुप ट्रांसलेशन होते हैं उनकी इम्पोर्टेंट होती है, मगर इन सारी चीजों में असल कामयाबी तब होगी जब आप प्रीएम्प्ट करेंगे, जब आप यानी जो जहां से ये हमला होने के इम्कानात हैं उन इलाकों को, उन लोगों को न्यूट्रलाइज करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो हमला है ये इस वक्त जो नॉर्थ, ये जो अपना ट्राइबल एरियाज में नॉर्थ वजीरिस्तान में जो एफर्ट हो रही है फॉरेनर्स को बाहर निकालने, और उस वक्त वहां के जिरगे ने उनको नोटिस भी दिया हुआ है, फौज ने भी एक ऑब्जेक्टिव किया हुआ है कि फलां तारीख तक जो है वो लोकल ट्राइबल्स को कहा है कि आप फॉरेनर्स को निकाल दें। अगर ये जैसे डीजी रेंजर्स के इंटरव्यू में लग रहा था कि ये इनकी जो अटैकर्स थे यहाँ पर वो फॉरेनर्स लग रहे थे, तो मैं समझता हूं कि। अच्छा दुरानी साहब, मैं एक थोड़ा वक्त कम है, मैं आपसे एक सवाल अहम करना चाहता हूं क्योंकि आप इन मामलात को करीब से देखते रहे हैं। चंद दिन पहले मॉन्ट्रियल में एक आदमी ने 3 पुलिस वालों को मारा, उन्होंने एक्शन करके पकड़ लिया। एक ऐसा मुल्क जहां जो मर्जी आदमी जहां मर्जी मकान बना ले, कोई हाउसिंग की पॉलिसी ना हो, आपने कहा कि अंदर आके मेल्ट हो जाते हैं, तो ये क्या इशू नहीं है कि हमने अपने समाज पे कोई इस तरह से मुनज़्ज़म और तरतीब नहीं दी और इन हालात में से करना बहुत मुश्किल है इन लोगों को पकड़ना? क्या कहेंगे आप? आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की। मसला ये है कराची और खासतौर पर इस्लामाबाद से मुझे बहुत जो खौफ लगता है कि बड़ी मास इमिग्रेशन हुई है लोगों की KPK से और बलूचिस्तान से भी इस्लामाबाद में, और वो जहां वो लोग बस रहे हैं, जहां पर आ रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है कि किसी शहर के किसी कस्बे में कौन आ रहा है, कौन सेटल हो रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, क्लास साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जो मुझे थोड़ी सी एक परेशानी हो रही है नुरानी साहब से। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें पहले। ठीक है, पहले मुझे ब्रेक लेने दें, आप हमारे साथ रहिएगा। दुरानी साहब, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद खुशामदीद साबिक सेक्रेटरी दाखिला तस्नीम नूरानी हमारे साथ हैं। क्लासा साहब आपसे नूरानी साहब बात करना चाह रहे हैं। जी क्लासा साहब। क्लासा साहब पहले मैं सिर्फ एक प्लस करना चाहूंगा। जी 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 कि मैं समझता हूँ कि इसमें एक फेलियर है कि इतनी बड़ी फोर्स जो थी जो उन्होंने वहां पर मौजूद थी, इनमें से कम एक दो बंदों को जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। अभी रिपोर्ट जैसी आई है उससे ऐसे लग रहा है कि कोई बंदा जिंदा नहीं पकड़ा गया। अगर वो करते तो मैं समझता हूँ कि इसकी तफ्तीश जो उनको पता चल जाता कौन मुलविस है। जी क्लासरा साहब। हाँ जी, नूरानी साहब से जो इनसे ये गुफ्तगू हो है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। पहले ही मैंने हमीद गुल साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। गुल साहब भी ये कह रहे हैं जी कि पॉसिबल नहीं है उन लोगों को ट्रेस करना, पकड़ना, फाइट करना जो डिटरमिन हो मरने के लिए। और अभी ये नूरानी साहब भी उसी तरह की बात कह रहे हैं मिलती जुलती, कि वहां से फॉरनर निकलते हैं उज्बेकिस्तान से, अफगानिस्तान से, वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ट्राइबल एरिया क्रॉस करते हैं, केपी क्रॉस करते हैं, वो पूरा पंजाब गुजर के जाते हैं, वो कराची पहुंच जाते हैं। और हमें कहा जाता है कि हमारे पास सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसीज है, 26 हमारे पास फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे एजेंसीज है जिनके अरबों रुपए के उनके अनऑडिटेड बजट है, हमारी फोर्सेज हैं। तो आप हमें ये बता रहे हैं कि तमाम के तमाम लोग जो हैं, जितनी एजेंसी में बता रहा हूं नूरानी साहब, ये सारे के सारे हम इतने नए लोग हैं कि किसी को किसी मरले पे हम ना ट्रेस कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। और पाकिस्तान एक फ्री फॉर ऑल स्टेट बन चुका है जिसका जहां पे जी चाहे घुसता चला जाए। और अभी जो हमने वेपन्स देखे, असला देखा है कि कराची जैसे शहर में इतना वेपन्स वो लेके किसी जगह बैठे हैं, उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने एक्ट किया है और वो कैरी करके गए हैं और कोई एजेंसी कहीं पे उनको रोकने वाली नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिकम फ्री फॉर ऑल स्टेट, जिसका जो जी चाहे चला जाए जहाँ पे। देखिए क्लासा साहब, जो है वो बात यह है कि बेस्ट केस सिनेरियो में तो वाकई नई चीज होनी चाहिए और इस चीज से बड़ी जल्दी हमें काबू पा लेना चाहिए था। मगर रियल लाइफ में बेस्ट केस सिनेरियोज हर दफा नहीं होते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर तो ये इंसर्जेंसी या एजिटेशन कुछ 100, 200, 500 लोगों की तरफ से होती तो फिर तो ये पॉसिबल था कि इंटेलिजेंस की वजह से सब कंट्रोल हो सकता। अब आपको ये इंटेलिजेंस एजेंसी से ये भी पूछना चाहिए या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कि अगर सपोजिंग ये वाकया 2 महीने के बाद हुआ है तो अगर इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग ना होती तो कितने ज्यादा और वाकयात होते। तो जो हमें तो सिर्फ नजर आता है वो जो वाकया हो जाता है, हमें वो नहीं नजर आता जो वाकयात प्रिवेंट होते हैं प्री अरेस्ट से या तैयारी से। दूसरा आपको बताऊं कि ये जो इस वक्त इनकी रिस्पांस जो हुई है इस दफा वो इंटेलिजेंस की वजह से लगता है हुई, क्योंकि जितनी उन्होंने इफेक्टिवली रिस्पांस की है उनकी तैयारी थी और मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस प्रोविजन की वजह से रही है। ठीक है। सिर्फ और इंटेलिजेंस का बहुत मुश्किल वक्त काम है। जंगें जब होती हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, 6 सितंबर की जंग हुई, दूसरी हमने हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसी को रोका के बताया कि जी आपने बताया नहीं कि कब हमला होना है, कौन से सेक्टर पे होना है। तो सर्टनली बेहतर हो सकता है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ऐसे वाकयात से मुकम्मल कैसे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब। अच्छा क्लास साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं मुल्क में इमरजेंसी लगा देता। मुत्तहदा कई बार कराची को फौज के हवाले करने की भी बात भी कर चुकी है, ये मुतालिबा भी कर चुकी है। क्या सोच लगती है ये आपको? ये तो और एक बात मैं भी ऐड कर दूं, शाजिया ने बड़ी वैलिड बात की है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक वफद मिलने गया था कायम अली शाह साहब से, यही मुतालबा लेके जिसे वो मिले नहीं। जी क्या लगता है, क्या सोच है इसके पीछे? शाजिया बात ये है कि मेरा आपको पता पॉइंट अभी हमेशा डिफरेंट रहा है कि 10 साल तो बरह रास्त अभी फौज ये रूल करके हटी है 5-6 साल पहले। आपके सामने कहां से सीड्स ऑफ कन्फेडरेशन आए हैं, कैसे हुए हैं, एक लंबी दास्तान। अब इतना टाइम नहीं है कि बैठ के किया जाए। जो असल चीज है, जो बात उस वक्त मैं कह रहा था और अनीक ने थोड़ा सा उसको डिफरेंट आके इंटरप्रेट किया है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं अभी ये दुनिया टीवी अखबार में काम करता हूँ, मुझसे भी लैप्सेस हुए 2-3 दफा माजी में दुनिया टीवी में काम करता हूँ। मेरी भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की ग्रुप चेयरमैन ने की, ग्रुप एडिटर ने की, मेरे एडिटर ने की, इवन न्यूज एडिटर ने की। और नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी चीज फाइल करता हूँ या बैठता हूँ, मेरे जहन पर दबाव होता है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है और होनी चाहिए। मेरे अंदर जिम्मेदारी का एक एलिमेंट आता है।
अगर आप अपनी ही यहाँ पे इंटेलिजेंस है, हमारी जो फोर्सेज हैं, दूसरे महकमे इनके बासेस को नहीं बुलाएंगे पार्लियामेंट में या किसी जगह बैठ के इनसे सवालों जवाब नहीं करेंगे जैसे दुनिया भर में किया जाता है। उन्होंने राम्स फील्ड को बुला लिया था इराक की फेलियर पे, उन्होंने अबू ग्राइब पे, और उसको ग्रिल किया था वहां पे सेनेट ने। ये चीजें आप नहीं करेंगे, कोई खौफ नहीं रहेगा। यू हैव टू पुट सम फेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये मेरा पॉइंट, मैं सोल्जर की बात कर रहा। दे आर ब्रेव पीपल और ऑफ कोर्स वो बहादुर लोग हैं, अपनी जानें भी देते हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मैं टॉप पे बैठे लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरी होती है, मेरी 2-3 दफा दुनिया टीवी में होती है। आपने वो अपना 7/7 का जिक्र किया लंदन में, मैं वहीं उस 7/7 पे उस दिन मौजूद था और एक चैनल के लिए मैंने सारा दिन उस इवेंट को मैंने कवर किया। मैंने उसको सारे दिन वहां पे गलियों में घूमता रहा, देखता रहा, तो वहां पे मैंने यही रवैया देखा। आप भी वहां मौजूद थे, आपने देखा होगा कि तमाम मीडिया, तमाम लोग ये कह रहे थे कि इस वक्त हम अपने पुलिस वालों के साथ हैं, बिल्कुल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ हैं। यार 12 साल से नहीं ये काम हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त हो गया। इस वक्त हम कम से कम जो खड़ा हुआ है अपनी जान, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये बात कि उनके बॉसेस को बुलाना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, पूरी कौम पाक फौज को सलाम पेश करती है, जिनकी वजह से हमेशा दहशतगर्दों के जो अज़ाइम है उनको नाकाम बनाया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से आने वाले बुलेटिन में भी आप अपडेट होते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।